चंदन साहब को यहाँ बता। थोड़ा सा शर्मा जी, जगमोहन जी इधर आ जाओ। You must have witnessed that the goal is 24/7 power supply, and that too assured and quality power supply. So that is the only simple intent behind all these measures. You have yourself witnessed that today, in today's scenario, wherever there is power, there are discoms, distribution companies. Meanwhile, if you have gone through some of the demands that have been raised by the union, they have mentioned that because of the unbundling, there have been certain disadvantages to them. I would like to bring forth the point that already it has been clarified, codified, and the government order issued in writing once this unbundling was done around 2 years back, that none of the service condition, the pay structure, the salary, the pensionary benefits, none of it would be altered to the disadvantage of any of the employees of the Power Development Department. For last 24 months, everyone is regularly getting the salaries and all the emoluments. There might have been certain delays somewhere down the line, and the MD of the corporations have clearly told that a mechanism can be evolved to ensure that there is a hassle-free and a streamlined, timely payment system. So I think that always can be worked out. There was certain demand of regularization. For that also, there is already a mechanism of a qualifying criteria in place, and mechanism is already there. Meanwhile, the issues pertaining to the joint venture that has been there, already the government has agreed that it has been put to hold. There can be a working group to work out the further modalities for the same. So if you have yourself gauged, the government has already acceded to all the demands, and as we said during the briefing also that was there few hours back with the union leaders, certain policy related issues and service related issues, they cannot be decided off the cuff and orders issued on the spot. It requires some kind of a joint working group and some time frame to adjudicate and decide upon such matters. So I think the stand of the government is quite clear. We are going to take steps to safeguard the public interest. Right now, what is the power scenario? I would like the MD JPDCL to brief you what kind of outages we are facing at present and what are the modalities in place. Thank you, sir. Regarding the power scenario in the Jammu province, the 10 districts which are covered in Jammu province. हाँ जी, बिल्कुल। जो जम्मू प्रोविंस है जिसमें 10 जिले आते हैं, इसके अंदर हमारे पास जो ट्रांसमिशन लेवल पर 136 फीडर हैं, 33 किलोवोल्ट कैपेसिटी है। ये जो 136 फीडर हैं, दे आर अंडर द डोमेन ऑफ जम्मू कश्मीर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे हमारे प्रोविंस में 1096 फीडर हैं, 11 केवी कैपेसिटी के। ये जो 1096 फीडर हैं, ये हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अंडर आते हैं। फीडर के अंदर आगे मतलब फीडर लगभग 25 से 40 किलोमीटर की लेंथ का एवरेज होता है, और सारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उससे कनेक्ट होकर आगे बिजली देते हैं। जो मैंने 136 ट्रांसमिशन फीडर की बात करी, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव था उसको ठीक करना, ताकि बिजली रिसीविंग स्टेशंस तक पहुंचे आगे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा 136 में से 50 फीडर
हमारे जम्मू एंड आसपास के जो एरिया हैं वो 12 स्टेशंस के थ्रू चलते हैं। इन 12 स्टेशंस के अंदर अभी की स्थिति में 2 ही फीडर अभी 2 के अलावा बाकी सारे फीडर हमने अप कर दिए हैं। हमारी जो टीम थी, हमारे चेयरमैन साहब, हम और हमारे कुछ हमारे साथ लोग थे, हमने मिलके सारे फीडर अप कर दिए हैं। 2 फीडर ऐसे हैं जिसमें एक में टीम गई है, बर्न का फीडर जो है, और एक बिश्ना में है जो शहर को कैटर करता है, वो अभी डाउन है। वो उम्मीद ये है कि कल 12 बजे तक वो भी बन जाएगा। इससे कम से कम हमारे पास पीछे से पावर आना सुनिश्चित हो जाएगा। इसके आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमें अभी ये बिजली जो आई हमारे पास, इसको हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो 1096 फीडर हैं। उसके अंदर हमने वो हमारे पास 366 स्टेशन हैं जहाँ से ये 1096 फीडर निकलते हैं। ये 10 जिलों में स्प्रेड आउट है। इसके अंदर हमने, हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ पे उपस्थित हैं, मिस्टर जगमोहन शर्मा, हमने यहाँ पे बैठ के स्ट्रेटजी बनाई है कि इसके अंदर हमने प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 के फीडर आइडेंटिफाई किए हैं। प्रायोरिटी 1 में जो हमें एकदम तुरंत ठीक करवाने हैं, ऐसे 50 हमारी लोकेशंस हैं। उसके बाद 35 और 35। इन 50 लोकेशंस में हमने टीम्स भेजी हैं, टेक्नीशियंस को हमने ट्रेन करके, इसमें हमने आर्मी से भी रिक्वेजिशन किया है हेल्प, इसमें टीम्स भेजी है। और ये हमारी उम्मीद है कि भी अगले कल शाम तक हम इसमें कुछ प्रोग्रेस दिखा पाएंगे। अगर आप ओवरऑल सिनेरियो की बात करते हैं तो इसके अंदर जहाँ पर हमारा लोड 1100 मेगावाट होना चाहिए पूरे प्रोविंस में, वो अभी 600 मेगावाट पे चल रहा है, लगभग 55% क्षमता पर चल रहा है। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि लगभग 45% सिस्टम जो है अभी डाउन। हमारा प्रयास है कि पहले जो ट्रांसमिशन, जैसे मैंने बताया, ट्रांसमिशन को पहले हम सही करें। और मैं मतलब बताना चाहूँगा कि शहर में काफ़ी हद तक वो ठीक हो गया है। और इसके बाद हमारा अब सेकंड है, जिससे हमारी टीम्स ओवरनाइट भी काम करेंगी, क्योंकि अब जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके ऊपर हम मेहनत करके और आर्मी की और अदर एजेंसीज की हेल्प लेकर उसको भी हम रिस्टोर करें। जी, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि आप कह रहे हैं कि हम उनको रेस्टोर करेंगे जो हमारे ट्रांसमिशन हैं। बड़ी बात इसमें यह है कि जो आपको आउटसाइड लाइनें लगी हुई हैं, उनको आर्मी कैसे रेस्टोर करेगी? देखिए, I spoke to army officials on ground. They said that we won't be able to restore them. We can only operate them. This is on ground reality. आप इसमें मैं बताता हूँ। देखिए, आर्मी इज़ नॉट ओनली रिस्टोरिंग, प्लीज़। हमारी एक जॉइंट टीम्स बन रही हैं। हमारे पास एक टेक्निकल ग्रुप भी है, ठीक है, जो हमने वेरियस अपने जैसे कंपनीज के थ्रू जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, स्पेशली RECPDCL जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इनके टेक्निकल वर्कर्स भी हैं, वो हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व हैं। उनको हमने मास्टर ट्रेनर्स भी बनाया है। वो हमारे जो आर्मी के टेक्निकल लोग हैं उनको ट्रेन भी करेंगी और वो खुद भी जो है रिस्टोरेशन में हेल्प करेंगी। ऐसे ऐसे 5-5, 4-4 लोगों के टेक्निकल दल बनाए गए हैं और उनके साथ आर्मी स्क्वाड भी रहेगा और वो जो वेरियस साइट्स है क्रिटिकलिटी के हिसाब से वहाँ पर जाकर जो संधारण का काम है, मेंटेनेंस और रिपेयर का काम है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, एक बात मैं कहना चाहता हूँ। ये जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ है, इनके साथ 2-3 राउंड वार्ता हुई है। 2 बार MD साहब ने बातचीत की है और आज शाम हमारी भी बातचीत हुई। आप में से कुछ लोग उस मौके पे मौजूद भी थे। जो उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं उनको पॉइंट वाइज रिड्रेस किया गया, जो कि MD साहब ने उस वक़्त वहाँ पे मौके पे बताया। कुछ इमीडिएटली रिड्रेस हो गए हैं, कुछ रिड्रेस एक प्रोसीजर के तहत होंगे जो कि हो जाएंगे। हमारी तरफ से उनको ये गुजारिश की गई थी कि लोगों को काफ़ी असुविधा हो रही है, जिसके कारण आप इस स्ट्राइक को, जो हमने आपको आश्वासन दिए हैं, उसकी बेसिस पे आप कॉल ऑफ कर लें। उस पे वो विचार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो विचार करके इसको कॉल ऑफ कर लेंगे। मीनवाइल लोगों की असुविधा जितनी भी कम की जा सके उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, जो कि आपको डिवकॉम साहब ने और MD साहब ने बताया। मुख्तलिफ एजेंसीज़ जो आउटसाइड जो PDD के एम्प्लॉयज़ की एजेंसीज़ हैं, उनसे या आर्मी से जो भी जितनी भी मदद हो सके, कोशिश ये है कि लोगों को कम से कम दिक्कत पेश आए जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ की वजह से जो हो रही है। वो अभी भी हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा और मुझे उम्मीद है कि ये जो स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे आश्वासन से आश्वस्त हो जाएंगे और अपनी स्ट्राइक को कॉल ऑफ कर लेंगे।
और हम अपने प्रयास में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखेंगे। अगर हमारी जो प्रयास जो चल रही है, लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रिस्टोर करने की जो प्रयास है, उस पे हम जो भी मीन सप्लाई कर रहे हैं, उसमें अगर कोई खलल डालता है या उसमें रुकावट पैदा करता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उस पे कोई ये ना समझे कि वो उसको बख्शा जाएगा। और अगर वो पीसफुली अपनी बात रखना चाहते हैं, उसमें हमें कोई परेशानी नहीं है, वो हमारे पास आए, अपनी बात रखें। हमने ऑलरेडी उनको आश्वस्त कर दिया है, और भी किसी तरह की क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो हम हमेशा तैयार हैं। तो मेरे ख्याल से क्या डिप्लोम सारी आर्मी के अंडर हो रही है रजिस्ट्रेशन, क्या आप जम्मू में ये खाली कर रहे हैं? ग्रेविटी को समझने में आप लोगों से चूक हुई है, क्योंकि आपकी जो बातचीत उनसे शुरू हुई है वो जब वो लोग प्रोटेस्ट पे जा चुके थे तब शुरू हुई है। अगर ये पहले शुरू होती तो इस तरह के माहौल से बचा जा सकता था जब आपकी 45% इलेक्ट्रिसिटी जम्मू में डाउन थी। मैं समझता हूँ महकमा और कॉरपोरेशन की तरफ से निरंतर वार्ता की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, और ऑलरेडी जो है वो इश्यूज अवेयर हैं एंड दे आर वेल सेटल्ड ऑल्सो। आपने देखा होगा जो एमडी साहब ने जवाब दिया, वो कोई एक दिन में फैसले नहीं लिए गए हैं, उनको बिल्कुल सोच विचार करके इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड गवर्नमेंट इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हुए उन फैसलों को लिया गया। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि एट द लास्ट मोमेंट जो है समथिंग न्यू थिंग्स हैव कम अप। ये भी चलती है तो आने वाले दिनों में किस तरह का जवाब मैंने आपको बताया, इनिशिएटिव लोगों को कम से कम कष्ट हो, और जो मैक्सिमम हमारे वेयर विदौल में है, मैंने आपको बताया पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी, विंटर कंडीशंस हैं। ऊपर जो हमारे ज़िले हैं, पहाड़ी ज़िले, वहाँ पर हार्श विंटर कंडीशंस हैं। कोविड पैंडेमिक के मिडल में है हम लोग वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स की बात कर रहे हैं आज की डेट में। हमारे कोविड मिटिगेशन मेजर्स चल रहे हैं, हम लोग कंटैक्ट ट्रेसिंग टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, ट्रैकिंग की बात कर रहे हैं। तो उसके बीच में जितनी हमारे पास क्षमता है और जितनी एजेंसीज हैं, उन सब का उपयोग लिया जाए। लेकिन सर आर्मी को बुलाया आपने, तो क्या सारी डिस्ट्रिक्ट्स में आर्मी की मदद आप लोग ले रहे हैं? जी देखिए, कुछ ऑपरेशनल मोडेलिटीज हम लोग शेयर नहीं करना चाहते। मेरे पास सिर्फ जम्मू में उसके अगर बात करें तो लोगों का रुझान जो है वो एम्प्लॉइज की तरफ जो है वो ज़्यादा ज़्यादा बढ़ता जाता है।